आत्मविकास सूत्र गुणस्थान। जेहिं दुलक्षिजन्ते उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्टा सव्वदर्शिहिं मिच्छो शासनमिश्रो अविरद सम्मूय देश विरदोय विरदोपमत्तयरो अपूर्वणियट्टि सुमोय वसंत क्षीणमोहो सयोगी केवलिजिनो अजोगीय चौदश गुणठाणानीय कमेन सिद्धायनाय वा तमिच्छत्तं जमसद्दहनं तच्चाणहोदियत्थानं संशयिदमभिगह्यम् अनभिगह्यं तु तं तिविहम् सम्मत्तरेण पौवय सिंहरादो मिच्छभाव समभिमुहो नासिय सम्मत्तोषो शासन नामो मुनेयो दही गुड़मिव वा मिश्रं पिहुभावं नैव कारितुं शक्यम् एवं मिश्रय भावो सम्मामिच्छोत्तिनायो नो इन्द्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे चावी जो सद्दहै जिनत्तुं सम्माइट्ठी अविरदोषो जो तसवहाउ विरदो नो विरवो एत्थ थावर वहाओ परिसमयं सो जीवो विरया विरवो युनेकमयी वत्ता वत्तपमाये जो वसई पमत्त संजो होई सयल गुणशील कलियो महोवई चित्तलायरणो नट्ठाशेष पमाओ वयगुणशीलो लिमंडियो नाणी अनुवसमो अखवो जाननी लीनो अपमत्तोषो एयम्मि गुणठाणे विसर्य समयट्ठियेहिं जीवेहिं पूवमापत्ता जम्मा होन्ति अपूवाहु परिणामा तारिस परिणामट्ठिय जीवाहु जिनेहिं गलियन्ति मिरेहिं मोहस्स पूवकरणा खवणो वसमनुजया भणिया होन्ति अनियट्टिनोते परिसमयं जेसिमेक परिणामा विमलयरझाण हुयवः सिहाहिं
निर्दष्टकम्मवना कुसुम्भो जिहराओ अभ्यन्तरदोय सुमरत्तोय एवं सुमसराओ सुमकसाओ तिणायो सकद कफलजलं वा सरये सर्वाण्यं वनिमलयं शयलो वसन्तमोहो वसन्तकषायो होदी निश्चय सखी नमोहो फलिहामलभायनुदय समचित्तो क्षीणकषाओ भण्णै निगन्थो वीयरायेहिं केवलनानदिवायर किरणकलावप्पणासियण्णानो नव केवल लद्धुद्धमा पाव्य परमप्पवयेषु असहायनानदंसन सहियो विहु केवलिहु जो येन जुत्तोत्तिशयो सजो इजिनो अनाई निहणादिसे उत्तो शैलेशिं संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गय जोगो केवली होई सोतम्यचेव समये लोयज्ञे उड्डगमनसद्भावो संचित्तय्य शरीरो पवरट्ठ गुणपवो नित्यम् अट्ठव्यकम्मव्यडा सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठगुणा कयकिच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा Samana Suttam, Sutra 32, Percepts on Spiritual Progress, Gunasthana, Atma Vikasa Sutra. English rendering, Sutra 546. Those states resulting from the fruition, etc. of karmas by which souls are distinguished are given the name guna, that is the spiritual stages by the omniscience. Gatha 547 and 548. There are 14 stages in the path of gradual spiritual development. Number 1, false belief. 2, failing from right faith. 3, mixture of right faith and wrong faith. 4, woe-less right faith. 5, spiritual observance of
hose. 6. Non-vigilant observance of hose. 7. Vigilant observance of hose. 8. Unique condition of bliss which has not been experienced before. 9. Constant thought activity, that is meditation. 10. Slightest attachment. 11. Subsided delusion. 12. Destroyed delusion. 13. Omniscient with activities. And 14th, omniscient without activity. It should be understood that emancipation is attained in stages. Sutra 549. Having faith in the things existing in a veritable fashion, that is called mithyatva. It is of three forms. That of the form of entertaining a doubt, that of the form of something developed deliberately, and that of the form of something not developed deliberately. Gatha 550. The soul falls down from the peak of the mountain of right faith with his face towards the plane of wrong faith, and has his right faith destroyed. This stage of soul is called sasavadana, having test of right faith. Gatha 551. The mixed stage of samyaktva, that is the right faith, and mithyatva, that is the wrong faith, which can in no way be split up into right and wrong belief, of just as a mixed test of curd and treacle cannot be referred to separately as sour or sweet, is known as Mishra Bhava. Gatha 552. He who has not hoped to abstain from indulgence in the senses and from hurting the mobile and immobile living beings, although he has firm faith in the doctrine propounded by the jina. This stage is said to be of a person of right vision without abstinence, that is avirata samyaka drushti. Gatha 553. One who desists from a killing of the mobile living being, but not from that of the immobile ones, and yet who has unwavering faith in jinas, is called virata or desha virata.
that is a partial observance of the vows. Gatha 554. One who has adopted the great vows is equipped with all virtues or virtuous qualities and good conduct, often exhibits negligence in manifest or a non-manifest form, and hence whose conduct is a bit defective, is to be called pramata pramatya, that is, non-vigilant observer of great vows. Gatha 555. The wise man who is well equipped with all vows, whose negligence has disappeared entirely, who remains absorbed in meditation, but who has started neither subsidizing his delusive karmas nor in annihilating his delusive karmas, is called apramatta samata, vigilant observance of great vows. Gatha 556. In this eighth stage of spiritual development, the soul experiences unique but frequently changing mental status of bliss, which have not been experienced ever before. Hence, the stage is called Apurva Karana. Gatha 557. The soul experiencing such mental states of bliss get ready either to subside or to annihilate their delusive karmas, are given the designation Apurva Karana by Jinas, free from all darkness, that is, the ignorances. Gatha 558. The souls occupying the ninth stage of spiritual development enjoys the constant mental state of bliss each moment and burn down the forest of the karmas through the flames of the fire of a very pure meditation are called anivrittikarana. Gatha 559. Just as a kusumbha flower has a slight tinge of reddish color, similarly a monk who has reached this 10th stage of spiritual development retains a slight tinge of attachment internally. Hence, the stage is called Sukshma Kashaya or Sukshma Samparaya, that is the stage of slight attachment. 560.
just as the water mixed with kataka fruit or a pond's water in the autumn season have their dirtiness subsided, similarly a person whose all delusive karmas have subsided is called Upashanta Kashaya, whose passions are subsided. Gatha 561. The monk whose all delusive karmas are inhibited and whose mind is clean, like the water placed in a crystal made vessel in designated Kshina and destroyed Kshina and destroys passions by the worthy soul free from all attachments. 562 and 563. It is stated in the eternal Holy Scripture that a monk who has destroyed the darkness of his ignorance by an assemblage of the rays of the Sun of Omniscience has obtained knowledge of the Supreme Soul on account of having acquired 9 superordinary and is equipped with determinate and indeterminate types of cognition requiring no help of external instruments, that is senses, is called Sayogi Kevali Jina. Though he is a Kevali, that is the omniscient, yet undertakes mental, vocal, and bodily activities. Gatha 564. The personage who has assured the state called Shailesi, that is the state of utter freedom from the activity whatsoever, in whom the entire karmic inflow has been put to a stop, who is free from the dirt of karma, is called Kevali, devoid of activities. 565. The moment the pure soul reaches this stage, it goes upward straight to the top of the universe according to its natural attributes, remains there forever in a disembodied form and endowed with the 8 supreme attributes. Gatha 566. The emancipated souls are one who are devoid of the 8 types of karmas, having attained peace, are devoid of all thoughts of blemish, are eternal, are equipped with 8 auspicious qualifications, are such as have already accomplished
whatever had to be accomplished and are residing at the top of the universe. Samana Suttam, Sutra 32, 32, आत्म विकास सूत्र यानी के गुणस्थान। हिंदी रेंडरिंग। सूत्र 546 मोहनीय आदि कर्मों के उदय आदि यानी के उपशम, क्षय, क्षयोपक्षम आदि से होने वाले जिन परिणामों से युक्त जीव पहचाने जाते हैं उनको सर्वदर्शी जिनेन्द्र देव ने गुण या गुणस्थान संस्था दी है, अर्थात सम्यक्त्व आदि की अपेक्षा जीवों की अवस्थाएं, श्रेणियां, भूमिकाएं गुणस्थान कहलाती है। सूत्र 547, 548 मिथ्यात्व, सासादान, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली जिन, अयोगी केवली जिन, ये क्रमशः 14 जीव समास या गुणस्थान है। सिद्ध जीव गुणस्थानातीत होते हैं। गाथा 549 तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा का अभाव मिथ्यात्व है। यह 3 प्रकार का है, संशयित, अभिगृहित और अनभिगृहित। गाथा 550 सम्यक्त्व रत्न रूपी पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व भाव से अभिमुख हो गया है, यानी कि मिथ्यात्व की ओर मुड़ गया है, परंतु सम्यक्त्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसने अभी साक्षात रूपेण मिथ्यात्व भाव में प्रवेश नहीं किया है, उस मध्यवर्ती अवस्था को सासादान नामक गुणस्थान कहते हैं। गाथा 551 दही और गुड़ के मेल के स्वाद की तरह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्रित भाव या परिणाम जिसे अलग नहीं किया जा सकता, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान कहलाता है। गाथा 552 जो न तो इंद्रिय विषयों से विरत है
और न त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है, लेकिन केवल जिनेन्द्र प्ररूपित तत्वार्थ का श्रद्धांत करता है, वह व्यक्ति अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानवर्ती कहलाता है। गाथा 5:5-3। जो त्रस जीवों की हिंसा से तो विरत हो गया है, परंतु एकेंद्रिय स्थावर जीवों यानी के वनस्पति, जल, भूमि, अग्नि, वायु की हिंसा से विरत नहीं हुआ है तथा एकमात्र जिन भगवान में ही श्रद्धा रखता है, वह श्रावक देश विरत गुणस्थानवर्ती कहलाता है। गाथा 5:5-4। जिसने महाव्रत धारण कर लिए है, सकल शील गुण से समन्वित हो गया है, फिर भी अभी जिसमें व्यक्त अव्यक्त रूप में प्रमाद शेष है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती कहलाता है। इसका व्रताचरण किंचित सदोष होता है। गाथा 5:5-5। जिसका व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण प्रमाद निशेष हो गया है, जो ज्ञानी होने के साथ साथ व्रत, गुण और शील की माला से सुशोभित है, फिर भी जो न तो मोहनीय कर्म का उपशम करता है और न क्षय करता है, केवल आत्मध्यान में लीन रहता है, वह श्रमण अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती कहलाता है। गाथा 5:5-6। इस 8वें गुणस्थान में विसदृश्य यानी के विभिन्न समयों में स्थित जीव ऐसे ऐसे अपूर्व परिणामों को यानी कि भावों को धारण करता है, जो पहले कभी भी नहीं हो पाए थे। इसलिए इसका नाम अपूर्वकरण गुणस्थान है। गाथा 5:5-7। अज्ञानांधकार को दूर करने वाले ज्ञान सूर्य जिनेन्द्र देव ने इन अपूर्व परिणामी जीवों को मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम करने में तत्पर कहा है। मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम तो 9वें और 10वें गुणस्थानों में होता है, किंतु उसकी तैयारी इस अष्टम गुणस्थान में ही शुरू हो जाती है। गाथा 5:5-8। वे जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले होते हैं, जिनके प्रति समय निरंतर एक ही परिणाम होता है। उनके भाव अष्टम गुणस्थान वालों की तरह
विसदृश नहीं होते। ये जीव निर्मलेतर ध्यान रूपी अग्निशिखाओं से कर्म वन को भस्म कर देते हैं। गाथा 5:5-9। कुसुम्भ के हल्के रंग की तरह जिनके अंतरंग में केवल सूक्ष्म राग शेष रह गया है, उन मुनियों को सूक्ष्म सराग या सूक्ष्म कषाय जानना चाहिए। गाथा 5:6-0। जैसे निर्मली फल से युक्त जल अथवा शरतकालीन सरोवर का जल मिट्टी के बैठ जाने से निर्मल होता है, वैसे ही जिनका संपूर्ण मोह उपशांत हो गया है, वे निर्मल परिणामी उपशांत कषाय कहलाते हैं। जैसे जल के हिल जाने से बैठी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है, वैसे ही मोह के उदय से यह उपशांत कषाय श्रमण स्थानच्युत होकर श्रमण सराग दशा में पहुंच जाता है। उपशांत कषाय और क्षीण कषाय में यही अंतर है। उपशांत कषाय वालों का मोह दबा रहता है और क्षीण कषाय का मोह नष्ट हो जाता है। गाथा 5:6-1। संपूर्ण मोह पूरी तरह नष्ट हो जाने से जिनका चित्त स्फटिक मणि को पात्र में रखे हुए स्वच्छ जल की तरह निर्मल हो जाता है, उन्हें वितराग देव ने क्षीण कषाय निर्ग्रंथ कहा है। गाथा 5:6-2 and 5:6-3। केवल ज्ञान रूपी दिवाकर की किरणों के समूह से जिसका अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो जाता है, तथा 9 केवल लब्धियों यानी के सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, दान, लाभ, भोग व उपभोग से प्रकट होने से जिन्हें परमात्मा की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, वे इंद्रियादि की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण केवली और काय योग से युक्त होने के कारण सयोग केवली तथा घाती कर्मों के विजेता होने के कारण जिन कहलाते हैं, ऐसा अनादि निधन जिनागम में कहा गया है। गाथा 5:6-4। जो शील के स्वामी है, जिनके सभी नवीन कर्मों का आश्रय अवरुद्ध हो गया है तथा जो पूर्व संचित कर्मों के बंध से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, वे अयोगी केवली जिन कहलाते हैं। गाथा 5:6-5।
इस 14वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेने के उपरांत उसी समय ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला यह अयोगी, केवली, अशरीरी तथा उत्कृष्ट अष्टगुण सहित होकर सदा के लिए लोक के अग्रभाग पर चला जाता है, उसे सिद्ध कहते हैं। गाथा 566। ऐसे सिद्ध जीव अष्टकर्मों से रहित, सुखमय, निरंजन, नित्य, अष्टगुण सहित तथा कृतकृत्य होते हैं और सदैव लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं। श्रमण सुत्तम सूत्र 32। आत्म विकास सूत्र यानी गुणस्थान। संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 546। एस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु संभवैर्भावैः जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टः सर्वदिदर्शिभिः। गाथा 547 548। मिथ्यात्वं सास्वादनः मिश्रः अविरत सम्यक्त्वः च देशविरतश्च विरतः प्रमत्तः इतरः अपूर्वः अनिवृत्तिः सूक्ष्मश्च उपशान्तः क्षीणमोहः सयोगी केवली जिनः अयोगी च। चतुर्दश गुणस्थानानि च क्रमेण सिद्धः च ज्ञातव्यः। गाथा 549। तद मिथ्यात्वं यद श्रद्धानं तत्त्वानां भवति अर्थानां संशयितमभिगृहीतं तु तत् त्रिविधम्। गाथा 550। सम्यक्त्वरत्न पर्वत शिखरात् मिथ्याभाव समभिमुखः नाशित सम्यक्त्वः सः सास्वादन नामा मंतव्यः। गाथा 551। दधि गूढ़मिव व्यामिश्रं पृथग्भावं नैव कर्तुं शक्यम् एवं मिश्रक भावः सम्यक् मिथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम्। गाथा 552। नो इंद्रियेश विरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे चापि यः श्रद्धयाति जिनोक्तं
सम्यक् दृष्टिर्विरतः सः। गाथा 5:5-3। यत्र शब्दाद्विरतः नो विरतः अत्र स्थावरवधात् प्रतिसमयं सह जीवो विरता विरतो जिनैकमतिः। गाथा 5:5-4। व्यक्ता व्यक्त प्रमादे यो वसति प्रमत्त संयतो भवति सकल गुणशील कलितो महाव्रती चित्रलाचरणः। गाथा 5:5-5। नष्टाशेष प्रमादो व्रत गुणशीलावलिमण्डितो ज्ञानी अनुपशमकः अक्षपको ध्यान निलीनो हि अप्रमत्तः सः। गाथा 5:5-6। एतस्मिन् गुणस्थाने विसदृश्य समयस्थितैर्जीवो पूर्वमन्नाप्ता यस्मात् भवन्ति अपूर्वा हि परिणामः। गाथा 5:5-7। तादृश्य परिणाम स्थित जीवः हि जिनैर्गलित तिमिरैः मोहस्य पूर्वकरणः क्षपणोपशमनोद्यतः भणितः। गाथा 5:5-8। भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयम् येषामेक परिणामः विमलतर ध्यान हुतावह शिखाभिर्निर्दग्धः मर्वणः। गाथा 5:5-9। कौसुम्बः यथा रागः अभ्यन्तरतः च सूक्ष्मरक्तः च एवं सूक्ष्मसरागः सूक्ष्मकषाय इति ज्ञातव्यः। गाथा 5:6-0। कत कफलयुत जलं वा शरदि सरः पानीयम् इव निर्मलकम् सकलोपशान्तमोहः उपशान्तकषायोऽति भवति। गाथा 5:6-1। निःशेष क्षीणमोहः स्फटिकमलभाजनोदक समचित्तः क्षीणकषायो भण्यते निर्ग्रन्थो वीतरागैः। गाथा 5:6-5:6-3। केवल ज्ञान दिवाकर किरण कलाप प्रणाशिता ज्ञानः नव केवल लब्धुयुद्गम प्रापित
परमात्मत्व उपदेशः असहाय ज्ञान दर्शन सहितोपि हि केवली ही योगेन युक्त इति सयोगिजिनः अनादि निधन आर्षे उक्तः। गाथा 564। शैलेशि संप्राप्तः निरुद्ध निःशेषास्त्रवो जीवः कर्मरज विप्रमुक्तो गतयोगः केवली भवति। गाथा 565। सो तस्मिन् चैव समये लोकाग्रे ऊर्ध्वगमनस्वभावः संचेष्टते अशरीरः प्रवराष्ट्रगुणात्मको नित्यम्। गाथा 566। अष्टविध कर्म विकलः शीतिभूता निरंजना नित्यः अष्टगुणः कृतकृत्याः लोगाग्र निवासिनः सिद्धः।